Hello everyone, good evening and welcome to another episode of Chota Vyapari. Today in this video we are going to discuss some mathematical points. So this video is going to be a bit longer एंड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी मैं समझाने वाला हूँ, तो धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करना। एंड अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो बार बार पॉज करके या बैक करके आप देख सकते हो, राइट। सो बहुत बार ऐसा होता है जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि देयर इज सो मच ऑफ फ्री मनी इन द मार्केट, फ्री मनी इन द मार्केट, फ्री मनी इन द मार्केट, ट्राई टू फाइंड आउट सेफ ट्रेड्स। व्हेन आई से फ्री मनी, इट डजंट मीन दैट द मनी इज फ्री, इट मीन्स दैट द रिस्क इन्वॉल्व in those trades are relatively very lesser as compared to some other trades. Okay, so that is the meaning of a safe trade, जहाँ पे एक easy, थोड़ा relatively easy हम पैसा बना सकते हैं with less amount of risk. हाँ, पैसा कम बनता है but the risk is very limited also. But पैसा कम बनता है, this is the wrong concept which I want to clarify today. Okay, by telling you about the percentage of profit and loss in such trades. So we will understand what is a safe trade, what is the risk, what is the reward, what is the profit and loss percentage, what is the amount required which needs to be deployed to take such trades, and how to do such trades. At the end we will also discuss what are the trades which we have taken today, and we will also discuss yet another successful rollover which we have done in index also, bank nifty also, and in one another क्या बोलते हैं share which is Reliance. Okay, so first let me start with what is a safe trades. Now safer trades means जहाँ पे वो मतलब आपके फेवर में ऐसा ट्रेड हो जिसका गलत होना बहुत डिफिकल्ट है. ओके, सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू, वॉक यू थ्रू द फर्स्ट ट्रेड. सो फर्स्ट ट्रेड इज Infosys. If you can see here, the first trade is, the third trade is in fact Infosys 1320 PE. Okay, and which month is it? It is for April, this month April expiry. Okay, if I go to the info, so I sold this at 3.35 rupees today. Okay, if you want to see the history, then this is where I sold it at 3.35 today. Okay, so now how did I identify this trade? Okay, now let's see Infosys का प्राइस अभी अपने recent high से कितना दूर है. If you see, this is the highest candle. तो इस हाई से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दूँ आज के प्राइस में, सो समवेयर 14 to 15 ऑड परसेंटेज, अगर ये आपको नंबर दिख रहा होगा, समवेयर 14 to 15 ऑड परसेंटेज इट इज़ डाउन टुडे अपने रीसेंट हाई से. अगेन व्हाट आई हैव डन इज आई हैव ट्राइड टेकिंग अ पोजीशन विच इज़ फार बिलो this point, which is 1320. So let's go to 1320 and see. So 1320 somewhere exactly here. Okay, so 10.64, that means close to, अगर ये आपको दिख रहा होगा. So what are the chances? Today is 3rd of April. Okay, and अगर आपने देखा होगा हमने 1320 का P सेल किया हुआ है Infosys का. Okay, of April expiry. Now April expiry is on 25th of this month, not on 30th, 25th, because this is the last Thursday of this month. Okay, now 3 अप्रैल से 25th अप्रैल तक कितने दिन बचे हैं? इफ़ यू सी, आइडियली इट इज़ 22 डेज, बट इसमें से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये एक वीकेंड है, प्लस उसके बाद एक वीकेंड, 2 वीकेंड, 3 वीकेंड, तो इसमें 3 वीकेंड्स इन्वॉल्व है, जिसका मतलब 6 दिन तो है ही नहीं, प्लस एक उगादी या कुछ का छुट्टी भी है. 7 days आर गॉन. दैट मीन्स इन 15 days what are the chances that it will fall from 1480 to 1300? Now what have I promised here when I sold a PE of 1320? Now first thing I promised was, if Infosys price goes below 1320, either I will take a loss or I will pick up the entire lot of Infosys by paying 1320 rupees per share, right? And 1320 into 400 shares is the lot size. So whatever this amount comes to be, I have to pay that much amount. Correct? This is what I have promised. Now understand this point. Okay, so यहाँ पे अगर देखोगे तो my thought process is Infosys a good share? The answer is yes, it's a good share. Is 1320 valid प्राइस फॉर Infosys? एज पर मी इट इज़ वैलिड, वेरी वैलिड प्राइस, बट आपके नज़रिए से वो ख़राब हो सकता है. तो जब ये शेयर मान भी लो कि वर्स्ट के सिनारियो क्या होगा, ये गिरता गिरता 1320 के नीचे चला गया.
तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्योंकि ये गिरेगा सडनली तो नहीं गिरेगा, ये स्लो एंड स्टडी गिरेगा। तो जब भी स्लो एंड स्टडी गिरेगा देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन इम्प्लीमेंट अदर स्ट्रैटेजीज टू कवर माई लॉसेस, और एट द सेम टाइम आई कैन गेट द बेनिफिट ऑफ टाइम वैल्यू डिक्रीजिंग, करेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, वो थीटा डिक्रीज की वजह से कहीं ना कहीं प्रीमियम कम होता जाएगा, एंड देर इज अ चांस कि अगर ये 1300 के पास भी आ गया ना, देन ऑल्सो आई माइट कम आउट इन प्रॉफिट और स्मॉल लॉस, और इवेंचुअली आई कैन कम आउट विथ नो लॉस और नो प्रॉफिट इन केस अगर वो नीचे जा रहा होता है, करेक्ट। बट व्हाट इज द बेस्ट केस सिनारियो, लेट्स से ये इस प्राइस पे आता ही नहीं है एंड ये 1320 से ऊपर रहता है, जिसके हाई पॉसिबल चांसेस हैं कि अगले 15 दिन में इन्फोसिस 10 से 11% गिर जाएगा, जबकि ऑलरेडी वो 15% गिर चुका है, इज वेरी रेयर। आई नॉट से इट कांट हैपन, बट इट्स वेरी वेरी लेस पॉसिबल, क्योंकि इसका मैंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया है जिसके थ्रू मुझे लगता है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल। दिस माइट नॉट बी ट्रू ऑल्सो, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से थोड़ा प्राइस रिवर्स हो जाए या थोड़ा टाइम लेके नीचे गिरे, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, बट दैट टाइम इज इन माई फेवर, करेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इससे हमारा रिस्क तो समझ में आ गया क्या है, करेक्ट। Risk is practically very less because either I can come out in profit, either I can use the time value to come out in no profit no loss, or I can take a small loss, correct। but profit कितना है, अब प्रॉफिट देखोगे 3.35, आई थिंक इट वाज 3.35, राइट। सो लेट मी जस्ट चेक द ट्रेड अगेन वंस अगेन, कितने में मैंने लिया था, yeah, I sold it for 3.35, correct। now the maximum value which I will get if Infosys keeps above 1320 is 3.35 into 400, correct, which is approximately, I think it will be 1340, 1340 के आसपास ही होगा। लेट मी जस्ट चेक अगेन फ्रॉम कैलकुलेटर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, अगर if it is possible, तो let me open up a calculator। 3.55 into 400 is the lot size, correct। so no अच्छा 3.35 था मेरे ख्याल से, कुछ गलत हो गया है, okay। so how to delete this, 3.35 into 400, so my maximum profit will be 1340। now 1340 rupees in 15 days, ये क्या है यार, ये मतलब दिन का ना, मतलब अगर देखोगे 100 रुपये भी नहीं बनता। तो लेट मी शो यू द रियल मैजिक विच इज हैपनिंग हियर, ओके। टू टेक दिस ट्रेड, as this is very very deep OTM put, the chances of going there is very very minuscule, so the margin requirement is also very less। so the margin, if you can check it today in the morning when I was taking the trade, it was close to 50,000, 51,000, right? You can check it today also, right? 50,000. now the beauty of this 50,000 is I don't have to put 50,000 cash here, as you know that what exchange suggests is half of this money can come from the pledged margin of your assets and half can be cash, correct। तो मेरे तो मैक्सिमम चीज़ें प्लेज्ड है, मैक्सिमम एसेट्स मैंने प्लेज करके रखा हुआ है स्ट्रैटेजिकली, उसके बाद का जो 50% का कैश है वो मुझे देना पड़ेगा। दैट मीन्स टू टेक दिस कंप्लीट ट्रेड आई ओनली हैड टू पुट इन 25,000 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 25, ये एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, डिस्क्लेमर दे दूँ पहले ही। सो 25,000 रुपीज़ आई हैड टू पुट इन, करेक्ट। नाउ 1340 अपॉन 25,000, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड कि ब्यूटी कहाँ पे आता है, ठीक है। so I am putting here 1340 divided by 25,000, it is approximately, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से, so it is approximately 5.36, okay। let's say टैक्सेस वैक्सेस में 0.36% चला जाता है, let's say 5% returns I got in कितना डेज, 15 डेज है एक्सपायरी के लिए, 15 दिन में 5% का रिटर्न। just go and calculate कि how much this return will turn out, okay, with 222 days। you will be shocked to see the answer, you'll be shocked to see the answer। the reality is कि in why 222 days, because technically approximately our share market is open for 220 days out of 365 days। let's consider this 200 days also, then also अगर आप इसके compounding effect को लोगे ना, it will be very very high। let's forget 15 days also, let's say that this much profit I am getting
in 1 month, do you know how much profit it will eventually make because of compounding in 12 months? Go home and check it. It will be 79.5% or approximately 80%. आपका 10 लाख रुपया 18 लाख रुपया हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस. इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन गो एंड चेक इन योर कैलकुलेटर. मैंने ये बहुत बार किया हुआ है 5% को लेके, इसलिए मुझे पता है कंपाउंडिंग होने के बाद 12 महीने के बाद कितना बनता है, राइट? सो दिस वाज द होल आइडिया. सो दीज आर कॉल्ड एज द रिलेटिवली सेफर ट्रेड्स, जहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज वहीं का वहीं रहता है, बट इवेंट ऑफ हैपनिंग इज इन योर फेवर इन सच अ, मतलब इतने फेवर में होता है आपका कि देर इज टू हाई चांसेस दैट दिस ट्रेड विल फॉल आउट इन योर फेवर, राइट? मैंने क्यों इतना दूर का लिया? क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्फोसिस में बहुत सारे मेरी पुट्टे इन द मनी हैं. दैट इज वाई दिस वाज अ रिलेटिवली सेफर बेट विच इज अ सेफ ट्रेड. क्लियर है? सो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड्स. इफ यू सी अगेन, मैंने सेम चीज़ आज मैंने उसमें भी किया, क्या नाम है, बैंक निफ्टी में भी किया. नाउ माई एक्सपेक्टेशन, इफ यू सी दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट. ओके, नाउ लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट टू 1 आवर एंड थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, आप देखने के लिए क्लियरली. सो इफ यू सी, जैसा कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बार सिखाया है कि हम जो ट्रेड करते हैं रिलेटिवली सेफर ट्रेड करते हैं, इंट्राडे नहीं करते हैं. इसीलिए वी विल लुक एट 1 आवर, 1 डे एंड 4 आवर चार्ट्स. करेक्ट? 1 डे, 1 मंथ, ये सारे चार्ट्स हम देखेंगे. करेक्ट? सो माई एक्सपेक्टेशन वाज, जब भी समझ क्या है कि जब भी इस तरीके की मूवमेंट्स होती है ना, वो एक बार अपने मूविंग एवरेजेस के पास आता है. तो माई एक्सपेक्टेशन वाज समवेयर हियर 400 450 के आसपास ये टच करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, प्लस ये ब्लू लाइन अगर आप देखोगे तो ये 20 मूविंग एवरेज भी है, ये भी टच कर रहा है. तो जब एक ग्रो करना शुरू होता है ना, 1-2 बार इसको टच करता है, फिर थोड़ा सा थम जाता है. करेक्ट? सो मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे जरूर उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि मिला. एट द सेम टाइम व्हेन द प्राइस वाज क्लोज टू दिस 47,377, व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक पोजीशन ऑलरेडी लिया हुआ था बैंक निफ्टी का. इफ़ यू सी दिस पोजीशन, समवेयर लास्ट फ्राइडे लिया था मैंने, शायद 75 क्वांटिटीज एट 48 रुपीज़ लिया था. आज मैंने इसको 2 रुपये में स्क्वायर ऑफ कर दिया. ये एक रोल ओवर का भी एग्जांपल है, प्लस एक सेफ ट्रेड का भी एग्जांपल है. कैसे? अगर आप देखोगे, मैंने अगेन एक ट्रेड इनिशिएट किया यहाँ पे. इफ़ यू सी द इन्फो, सो दिस इज़ फॉर 16 का एक्सपायरी का है, 16th वीक का एक्सपायरी का है, 45,500. ना इमेजिन 45,500 कहाँ है, कितना दूर है यहाँ से? लेट्स जस्ट, अगर यहाँ से देखोगे, आज चल रहा है 47,600 पे. 45,500 इज अप्रॉक्सीमेटली 2,160 पॉइंट्स बिलो. सो कितना चांसेस है कि अगला 10-15 दिन में से 4 दिन 3 दिन छुट्टी है, उसमें इतना प्राइस गिर जाएगा? चांसेस तो है, बट मैंने यहाँ पे जब ट्रेड लिया था, मैं ये सोचा था कि आई विल डू अ बियर पुट स्प्रेड, बट यहाँ ट्रेड लेते ही मार्केट ऊपर चला गया थैंकफुली. एंड यहाँ मुझे ऑलरेडी, इफ़ यू सी, आज दिन भर में ही 2,000 का प्रॉफिट हो चुका है. तो अगर मैं इसमें अभी बुल पुट स्प्रेड बनाता भी हो ना, तब भी मैं इसमें सेफ भी हो जाऊंगा एट द सेम टाइम. बट इसमें मेरे ख्याल से बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है. कुछ अगर इवेंचुअली अचानक से मार्केट बहुत ज़्यादा रिवर्स हो गया, देन आई विल थिंक ऑफ सम स्ट्रैटेजी. अदरवाइज आई विल जस्ट लीव दिस पुट पोजीशन ओपन टू प्ले आउट. ओके, आई होप कि समझ में कुछ लोगों का आया होगा. जिनको नहीं आया होगा, वॉच दिस वीडियोस, और या फिर क्लासेस का वेट करो जहाँ पे आपको पुट ऑप्शंस का समझाया जाएगा. एट द सेम टाइम, इफ यू सी, रिलायंस का 2800 का पुट ना मैंने बेचा हुआ था, लेट्स सी, 41 में बेचा हुआ था. करेक्ट? मई का पुट था ये. एंड अगर आप देखोगे, ये मई का पुट था, एंड कितने का प्राइस का था? 2800 के पी का था. एंड इसको मैंने आज कवर किया 26 में. क्यों कवर किया? इसको मैं प्ले आउट होने के लिए भी दे सकता था, पूरा 26 रुपीज़ खा सकता था. बट मान के चलो, इस महीना अगर ऐसे रिलायंस तो बढ़ रहा है, लेकिन गिरता गिरता 2800 के नीचे आ गया, तो मेरे हाथ से ये जो पूरा प्रॉफिट है ना, ये पूरा का पूरा निकल जाता. मतलब ये प्रॉफिट नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट द प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट. 3,457 में निकल जाता, प्लस मुझे 2,800 रुपये में शेयर भी खरीदना पड़ता. करेक्ट? बट यहाँ पे मैंने क्या देखा, अगले महीने का पुट अगर देखोगे, सो वेयर इज दैट नेक्स्ट मंथ्स पुट, रिलायंस. हाँ, सो इफ यू सी दिस आई सोल्ड एट टुडे एट 36 रुपीज़, जो कि बाद में बढ़ के 41 हो गया था, इसलिए टेम्पोररी ये लॉसेस दिखा रहा होगा 1250 का. लेकिन 36 रुपये का मेरा बिक गया. मतलब क्या है, अगर मैं इस महीना रखा होता तो मुझे 26 रुपये मैक्सिमम मिलते, और
क्योंकि इसका प्राइस डिक्रीज होते होते, लेट्स सी द इन्फो, इसका प्राइस डिक्रीज होते होते 26 रुपये का हो गया था जब मैंने खरीदा, तो मुझे 26 रुपये मिलता और मैक्सिमम 26 रुपये और मिलता, करेक्ट। और अगर ये लेकिन इन द मनी हो जाता तो वो मिलता भी नहीं, करेक्ट और नॉट। तो बट द पॉइंट इज कि ये 26 रुपया भी मिला प्लस उसके ऊपर 10 रुपया भी मिला। सो आई रिड्यूस्ड इवन इफ एट द मंथ ऑफ दिस मंथ, व्हाट इज दिस, जून आई थिंक, जो मैंने रिलायंस वाला लिया, हाँ जून, अगर जो मुझे 2800 में उठाना ही है तो 2800 के नीचे 26 रुपया में क्यों उठाऊं, 2800 के नीचे 26 प्लस 10 36 रुपये में उठाता हूं, तो मुझे 36 रुपये सस्ते में इन रिलायंस का शेयर मिल जाएगा। दैट वाज द होल थॉट प्रोसेस ऑफ दिस रोल ओवर। जिसको समझ में आया है ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है वी रिकमेंड यू वॉच इट वंस अगेन। These are, this is an example of a proper rollover, right? This was not a safe trade, this was in fact an aggressive trade, but this is an example of rollover. अब मतलब अग्रेसिव मैं अपने हिसाब से मानता हूँ बिकॉज मैं छोटा ट्रेडर हूँ, मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाने में बिलीव करता हूँ। अग्रेसिव ट्रेड तब होता जब आप 3000 का पुट बेचते, 3100 का पुट बेच देते, बट दिस इज अग्रेसिव एज पर मी ऑल्सो बिकॉज पेइंग 2800 रुपीज फॉर 250 शेयर्स इज ऑल्सो अ बिग डील फॉर मी, राइट। सो आई एम हैप्पी विथ 3750, एट द सेम टाइम आई गॉट अ बेटर प्राइस ऑफ 36 रुपीज, सो वो मैंने ले लिया। दिस हाउएवर वॉज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेफ पुट एंड रोल ओवर डन एट द सेम टाइम। ये मैंने वापस खरीद लिया एंड 16 तारीख का एक पुट बेच दिया जिसमें 50 रुपये का प्रीमियम था। अब 3-4 चीज़ें हो सकती है, मैंने यहाँ पे 90 शेयर्स बेचा, 90 लॉट्स बेचा है, तो इसमें मुझे 6 लॉट बेचा है, तो इसमें मुझे 90 into 50 मैक्सिमम 4500 का प्रॉफिट होगा अगर प्राइस 45,500 के ऊपर रहा। अगर मान लो सडनली नीचे आने लगा तो क्या ये 26 से ग्रो करके सीधा 100 चला जाएगा? क्या पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन उसके लिए मार्केट को बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, जबकि हम देख चुके हैं मार्केट, इनफैक्ट इफ यू सी द मार्केट इज करेंटली इन अ ग्रोइंग फेज। अगर आप ये देखोगे स्लो एंड स्टडी क्या होता है, अगर आप देखोगे तो इट इज स्पेंडिंग सम टाइम हियर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये मेरे को लगता है, मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल ब्रेक आउट टूवर्ड्स द हायर एंड। ओके, सो आई होप कि इन वीडियो से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज वेट फॉर द क्लासेस, जब ये पढ़ाया जाएगा और वापस से ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड बेयरिंग विथ अस। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए तो डू कंसिडर शेयरिंग दीज वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, इट विल हेल्प अस इवेंचुअली। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।